Hello, good morning students. This is Anupama Labhe, obviously for your subject Business Law. And today we are going to start our new unit, that is the third unit, and which is related to Negotiable Instrument Act 1881. So let us start with the definition of negotiable instrument. What is negotiable instrument? Negotiable instrument literally means a written document which contains a right in favor of some person and which is freely transferable. So what is negotiable instrument? Negotiable instrument must be in writing. Anything which is orally made cannot be considered as a negotiable instrument. In Contract Act we had seen that contract may be oral or written, it may be expressed or implied. But when we talk of negotiable instrument Act, the instrument must be in writing to treat it as a negotiable instrument. And the other one is it creates a right in favor of some person. That means it creates a right. What type of right it creates? A right to entitle the amount mentioned in that particular instrument and which is freely transferable. This is the additional condition to treat an instrument as a negotiable instrument, that it must be freely transferable. It can be transferred by order or it can be transferred mere delivery or through endorsement. Okay. So if these conditions are fulfilled by any instrument, then we call that instrument as a negotiable instrument. So let us recap this definition. The negotiable instrument means a written document which creates a right in favor of some person and which is freely transferable. The Section 13 of Negotiable Instrument Act defines negotiable instrument as promissory note, bills of exchange or check, payable either to order or to bearer, whether the words order or bearer appear on the instrument or not. What Section 13 of Negotiable Instrument Act defines negotiable instrument, and it is a promissory note. It may be a promissory note, it may be a bill of exchange or it may be a check. So what you understand from negotiable instrument? Negotiable instrument are of three types. What are these three types? First is promissory note, second one is bill of exchange, and the third one is check. These three are considered as Negotiable Instrument Act under Section 13 of Negotiable Instrument Act. Okay? And whether the words order or bearer appear on the instrument or not. It is not compulsory to mention by order or to the bearer in a Negotiable Instrument Act. But if it contains these characteristics, that is characteristics of freely transferability, it must be in written and it creates a right in favor of a person, then we can treat these instruments as a negotiable instrument. Is it clear? So let us see what is payable to bearer. What we had seen in this definition, check payable either to order or to bearer. So what is payable to order? Payable to order means an instrument is payable to order if it is expressed to be so payable or it is and does not contain certain words prohibiting transfer or indicating an intention that it shall not be transferable. Anything, that means payable to order means it is not compulsory to mention that it is payable to order. Okay. But what it must not contain, it must not put some restrictions that it cannot be a transferable instrument. So let us take one example, pay to A. Okay, this is called a payable to order instrument. Pay to A or order. Here we are not using the phrase order, but even though it is considered as by order, because it is not prohibiting the right to further delivery of such an instrument. Payable to A or order, payable to the order of A. See what is the difference. Here what is mentioned? Only pay to A.
Okay, here pay to A or order. That means the instrument gives rights to A to get the money or get the amount mentioned in an negotiable instrument, or to his order someone else can be entitled to get the amount, and payable to the order of A. Pay to the order of A. That means the order as per the instructions made by A, the instrument may be payable. Let me again explain this meaning and definition in Hindi, so it will be more clear for you to understand the meaning of negotiable instrument. What is negotiable instrument? क्या बताया negotiable instrument में? It means a written document which creates a right in favor of some person and which is freely transferable. क्या है negotiable instrument? Negotiable instrument एक ऐसा instrument है जो लिखित स्वरूप में है. That means which is in writing. और क्या है, वो एक राइट क्रिएट करता है. राइट क्रिएट करना यानी क्या है, किसी को हक देता है. हक किस चीज के बारे में देता है, वो हक ऐसे देता है कि जो अमाउंट इसमें मेंशन है वो उसे ले सकता है. और कैसे ले सकता है? टू द बेरर, यानी जिसने जो इंस्ट्रूमेंट होल्ड किया हुआ है, जिसके हाथ में है, वो इस अमाउंट के लिए एंटाइटल हो सकता है, या तो उसके ऑर्डर से कोई और पर्सन उसको अमाउंट लेने के लिए एंटाइटल हो सकता है. राइट इन फेवर ऑफ सम पर्सन एंड विच इज फ्रीली ट्रांसफरेबल. और वो क्या हो सकता है? मेरे पास अगर एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आया है, मैं चाहूँ तो उसकी अमाउंट मैं खुद ले सकती हूँ, या तो मैं किसी और को ट्रांसफर करके उस अदर पर्सन को ये राइट देती हूँ कि उसमें जो अमाउंट मेंशन की गई है वो उसे ले ले. एक एग्जांपल देना चाहती हूँ. जैसे कि आप है, आपको मुझे 5,000 रुपये देने हैं, ठीक है. तो आपने एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, समझ लीजिए प्रॉमिसरी नोट. तो आपने एक लिया है प्रॉमिसरी नोट, उसमें आपने मेंशन किया है आई प्रॉमिस टू पे डॉक्टर अनुपमा लाभे ₹5,000 बाय ऑर्डर, और देखा ना हमने, टू ऑर्डर और टू द बेरर और टू बेरर, ऐसा आपने मेंशन किया हुआ है. और अगर समझ लीजिए कोई और एक थर्ड पर्सन है जिसे मुझे 5,000 रुपये देने हैं. समझ में आ रहा है? एक आप हो जिसे मुझे 5,000 रुपये देने हैं, एक मैं हूँ मुझे और किसी को 5,000 रुपये देने हैं. आपने एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मुझे दिया हुआ है, और अभी मैं वो क्या करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे किसी और व्यक्ति को 5,000 रुपीज देने हैं, तो मैंने उसे वो ट्रांसफर किया. फ्रीली ट्रांसफरेबल, मियर बाय ट्रांसफर, यानी क्या किया है, मैंने सिर्फ उसको हैंड ओवर किया है. या थ्रू एंडोर्समेंट. एंडोर्समेंट का मतलब ये होता है कि उसके बैक साइड में, वो इंस्ट्रूमेंट के बैक साइड में मैं उस पर्टिकुलर पर्सन का नेम मेंशन करती हूँ, और जब मैं ये नेम मेंशन करके उसे जब वो इंस्ट्रूमेंट हैंड ओवर करती हूँ, देन दैट इज नोन एज एंडोर्समेंट. तो इस तरह से ये क्या हो गया, इट इज फ्रीली ट्रांसफर्ड फ्रॉम मी टू दैट थर्ड पर्सन. समझ में आ गया है? तो ऐसे इसको क्या कहा जाता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. तो हमने क्या देखा, पेबल टू ऑर्डर. पेबल टू ऑर्डर में हमने क्या देखा है कि किसी पर्सन ने उसमें एक ऑर्डर, पेबल टू ऑर्डर ऐसा मेंशन किया है. आपने कभी आपका ये देखा है, चेक देखा है, चेक में भी लिखा है बाय ऑर्डर, बराबर है. तो ये ऑर्डर कौन देता है, समझ लीजिए. जैसे पे टू ऑर्डर, चेक किसके ऊपर निकाला जाता है मालूम है? किसी भी पर्सन के ऊपर नहीं, इंडिविजुअल के ऊपर नहीं. एक चेक दूसरे बैंक के ऊपर क्या निकालता है, ऑर्डर निकालता है. कभी भी आप जरा केयरफुली चेक को देखिए. चेक जो है वो किसी पर्सन को नहीं बोलता है, वो उस पर्सन के बैंक को बोलता है. पे टू ऑर्डर और टू द बेरर. समझ में आया है? यानी अगर मेरे पास में चेक आ गया तो क्या मैं उसके अगेंस्ट में आपको कैश दे सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं. मुझे वो कहाँ पे डिपॉजिट करना है, बैंक में. अगर बेरर चेक है, वही बैंक का मेरा अकाउंट है, तो जैसे मैं उनको चेक दे देती हूँ, वो मुझे क्या दे दे, पैसे. लेकिन चेक क्या है, अपने आप में पैसे नहीं दे सकता है. इसलिए एक बैंक जब चेक निकालती है, वो दूसरे बैंक के ऊपर निकाला जाता है, किसी इंडिविजुअल के ऊपर नहीं. इज इट क्लियर? तो ये क्या बताया है, एक्सप्रेस टू बी सो पेबल और टू एंड डज नॉट कंटेन सर्टन वर्ड्स प्रोहिबिटिंग ट्रांसफर और इंडिकेटिंग एन इंटेंशन दैट इट शैल नॉट बी ट्रांसफरेबल. लेकिन समझ लीजिए कि मैंने एक प्रॉमिसरी नोट है, मैंने आपके ऊपर निकाली हुई है, ठीक है. मैंने प्रॉमिस दिया है कि मैं आपको अमाउंट पे करने वाली हूँ.
लेकिन अगर मैं उसमें मेंशन करती हूँ पर्टिकुलरली आपका नाम और सिर्फ इन्हीं को दिया जाए और ये किसी और को उसे ट्रांसफर नहीं कर सकते, if I mention, that means I am prohibiting the transferability of that particular instrument, then that instrument cannot be in any case be called as negotiable instrument. Why it cannot be called as negotiable instrument? Because you are restricting the free transferability of the negotiable instrument, which is one of the characteristics to treat an instrument as a negotiable instrument. Is it clear? So, what is the third one? Payable to bearer. Here, payable to order or to the bearer. What does it mean? An instrument is payable to the bearer. It is expressed to be so payable. समझ में आया है? आपने एक्सप्रेसली ऐसे बताया है कि पेबल, ये पर्सन को क्या है? पेबल टू बेरर, यानी एनीवन हु इज होल्डिंग द इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज अ बेरर। और जिसके हाथ में वो इंस्ट्रूमेंट आ गया है उसे वो क्या मिलने वाले है? उसमें जो अमाउंट मेंशन है वो मिलने वाली है। पेबल टू द बेरर इन केस द इंस्ट्रूमेंट इज ओरिजिनली पेबल टू ऑर्डर। देखिए ये क्या है? पहले क्या किया था? ऑर्डर, पेबल टू ऑर्डर आपने बनाया था। मैंने जैसे आपको कहा कि एंडोर्समेंट कर सकते हैं, इट कैन बी ट्रांसफर। एंडोर्समेंट क्या है? बाय पुटिंग द नेम ऑफ द ट्रांसफरी ऑन बैक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, दैट इज नोन एज एंडोर्समेंट। लेकिन मैंने किसी का नाम उसके ऊपर लिखा हुआ नहीं है और मैंने सिर्फ क्या किया है? उसे ट्रांसफर किया है। इवन दो द प्रीवियस होल्डर transfer the instrument through endorsement, but what now I am doing, मैंने इसके ऊपर किसी का भी नाम नहीं लिखा हुआ है, ऐसे ही मैंने उसको ट्रांसफर कर दिया है। Then even though originally the document was payable to order, now it becomes payable to bearer. क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि मैंने अभी किसी का भी नाम उसके ऊपर मेंशन नहीं किया है, but it is endorsed in blank. एंडोर्स्ड इन ब्लैंक यानी किसी का भी नाम ना मेंशन करते हुए दे देना, हैंड ओवर करना। द इंस्ट्रूमेंट विल बिकम पेबल टू द बेरर। ओरिजिनली कैसा हुआ था? पेबल टू ऑर्डर, लेकिन अब वो क्यों पेबल टू बेरर हो रहा है? क्योंकि आपने उसको ब्लैंक एंडोर्स किया हुआ है। दैट्स व्हाई दैट इंस्ट्रूमेंट बिकम्स द पेबल टू ऑर्डर। ओके, पेबल टू द बेरर। These are some conditions to treat an instrument as negotiable instruments. ये समझ में आ गया है पूरा का पूरा? पेबल टू ऑर्डर क्या होता है, पेबल टू बेरर क्या होता है? पेबल टू ऑर्डर में हम लोग उसका पर्टिकुलर नाम मेंशन करते हैं और पेबल टू बेरर में हम लोग जब ट्रांसफर करते हैं तो ब्लैंक ट्रांसफर करते हैं एंड इट गिव्स द राइट टू द होल्डर टू गेट द मनी। ठीक है, तो बेरर जो भी होगा उसे उस अमाउंट के लिए हक मिल जाता है। So these are some conditions which must be fulfilled by an instrument to treat it as a negotiable instrument. What are those conditions? Payable to A or bearer. Pay to the bearer. हमने क्या लिखा हुआ है इसमें? Payable to A or payment to A or bearer. यानी पर्टिकुलरली मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? एक तो ए को दे दीजिए, या फिर मैंने ये कहा हुआ है कि बेरर जो भी वो इंस्ट्रूमेंट का बेरर होगा उसे अमाउंट आपको पे करनी है। दूसरा क्या है? पे टू द बेरर। पे टू द बेरर यानी जिसने हाथ में आए हैं उसे आप दे दीजिए। तो ये दो इसमें आप यू कैन ट्रांसफर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नाउ लेट अस सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। फर्स्ट वन इज नेगोशिएबिलिटी। नेगोशिएबिलिटी मीन्स फ्रीली ट्रांसफरेबल। समझ में आया है? फ्रीली ट्रांसफरेबल अगर वो इंस्ट्रूमेंट है तो हम उसे क्या कहते हैं? नेगोशिएबिलिटी। वो कैसे होती है? पेबल टू ऑर्डर भी हो सकती है, पेबल टू बेरर भी हो सकती है, विच वी जस्ट डिड। दूसरा क्या है? टाइटल। जनरली जो ट्रांसफर करता है इंस्ट्रूमेंट उसके पास उसका टाइटल होता है। व्हाट डज इट मीन? दैट मीन्स ही इज द ओनर और ही हैज अ राइट टू गेट द अमाउंट। समझ में आ रहा है? जैसे मैंने आपको एक इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है तो ये क्या बताता है कि जो आप उसको रिसीव कर रहे हैं, ओरिजिनली मैंने उसे बनाया और आपको दिया हुआ है, तो ये आपको राइट देता है कि उसमें जो अमाउंट मेंशन है वो आप उसे ले लो। क्यों ये किया हुआ है? क्योंकि आपने यू आर गेटिंग दैट इंस्ट्रूमेंट फॉर कंसिडरेशन,
फॉर वैल्यू। जैसे मैंने अभी एक आपको प्रॉमिसरी नोट का एग्जांपल दिया था। क्या एग्जांपल दिया था कि प्रॉमिसरी नोट आपको मुझे 5,000 रुपये देने थे, इसलिए आपने मुझे एक प्रॉमिस लिख के दिया है, आई ओ ₹5,000 टू डॉक्टर अनुपमा लाभे, ठीक है। और आप उसे क्या करने वाले हो कि आप उसका पेमेंट करने वाले हो। आई प्रॉमिस टू पे डॉक्टर लाभे ₹5,000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड, ऐसे आपने मेंशन किया हुआ है। तो जब मैं वो प्रॉमिसरी नोट को होल्ड करती हूँ तो मैंने किस इसमें किया है, इन गुड फेथ। गुड फेथ क्यों? क्योंकि आपने मुझसे कुछ 5,000 रुपये लिए थे, या मैंने आपको कुछ 5,000 रुपीज़ के गुड सेल किए थे और आपने अभी मुझे पैसे नहीं दिए हैं, तो आपने प्रॉमिस दिया है कि पर्टिकुलर डेट पे हम आपको इतने पैसे देंगे, बराबर है। सो आई एम नोन एज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। क्यों? क्योंकि मैंने वो गुड फेथ में लिया हुआ है। फिर ये मैं ट्रांसफर करती हूँ किसी थर्ड पर्सन को, एज आई सेड अर्लियर कि मुझे भी किसी को 5,000 रुपये देने थे, इसलिए मैंने वो क्या दिए हैं, उस व्यक्ति को, वो पर्सन को मैंने वो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर किया है। वो जो होल्ड करता है वो भी कैसे करता है, गुड फेथ में, और टाइटल मेरा भी कैसा है, गुड है, इसलिए टाइटल फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स होना चाहिए। देन ओनली the receiver of that particular negotiable instrument has a right to recover the amount in his own name। समझ में आ रहा है कि खुद उसे मेरे पास आने की और किसी पहले मैंने किसी से लिया है तो उनके पास जाने की उसे जरूरत नहीं है। वो जो उसे डिनाई करता है, समझ लीजिए जैसे आपने ये अमाउंट पे करने के लिए डिनाई किया, तो आपके अगेंस्ट में वो मुझे नहीं बोलेगा कि आप केस फाइल कीजिए। क्यों नहीं बोलेगा? बिकॉज ही हैज अ राइट टू सूट अ फाइल अगेंस्ट यू इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। समझ में आ गया? दैट इज द मीनिंग ऑफ टाइटल। देन रिकवरी। रिकवरी क्या है? क्या होती है रिकवरी? वैसे अभी मैंने जैसे आपको कहा, हु इज एंटाइटल्ड टू रिकवर द अमाउंट? The person who has received the negotiable instrument in good faith has a right to recover the amount in his own name। तो ये क्या हो गया? उसके पास गुड टाइटल था। गुड टाइटल का मतलब होता है फॉर वैल्यू उसने रिसीव किया है, और विदाउट हैविंग एनी इंटीमेशन दैट द टाइटल of the previous endorser is free from all defects। अगर उसे ये मालूम है कि previous endorser जो है उसने जो मुझे endorse किया हुआ इंस्ट्रूमेंट है वो free from all defects है, तो उसे क्या कहा जाता है? होल्डर इन ड्यू कोर्स। लेकिन उसे कुछ भी उसके बारे में इंटीमेशन है कि प्रीवियस जो ओनर है इंस्ट्रूमेंट का उसने गुड फेथ में होल्ड किया नहीं है, तो ही डज नॉट गेट अ गुड टाइटल। समझ में आ रहा है? मुझे अगर कुछ भी मालूम नहीं, समझ लीजिए कि आपने मुझे जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर किया हुआ है आपने वो गुड फेथ में नहीं लिया था, ठीक है, फॉर वैल्यू या कंसिडरेशन में आपने उसको होल्ड किया हुआ नहीं है, आपका टाइटल कैसे हो गया? डिफेक्टिव हो गया, और आपने मुझे ट्रांसफर किया, मुझे कुछ भी मालूम नहीं, मैंने यही प्रिज्यूम किया था कि आपने जो इंस्ट्रूमेंट मुझे दिया हुआ है वो फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स है, तो मैं क्या हो जाती? होल्डर इन ड्यू कोर्स एंड आई हैव अ राइट टू रिकवर द अमाउंट। लेकिन अगर मुझे मालूम है कि आपके जो टाइटल है वो डिफेक्टिव है, देन आई लूजेस द राइट टू रिकवर द अमाउंट फ्रॉम माय ओन नेम। बराबर है? तो फिर मुझे वो क्या करना पड़ेगा? आपके पास आना पड़ेगा, और आपको आपके अगेंस्ट में मैं केस फाइल कर सकती हूँ, ओरिजिनल ड्रॉअर के अगेंस्ट में नहीं। ठीक है? Then the presumptions. What are the presumptions of negotiable instruments? These are all the presumptions. Let us see one by one. That every negotiable instrument was drawn, accepted, and endorsed or made or transferred for the consideration. मैंने अभी आपको बताया कि क्या किया हुआ है आपने। ये every negotiable instrument, whether it may be a bill of exchange, it may be a promissory note or a check. क्या है उसमें? That every negotiable instrument was drawn, निकाला हुआ है, उसे एक्सेप्ट किया हुआ गया है, endorsed, made और transferred for consideration। देखिए
ड्रॉन है, एक्सेप्टेड है। प्रॉमिसरी नोट को एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है एक्सेप्टेंस की जरूरत? मुझे ही पे करना है, मैं ही प्रॉमिस करके दे रही हूँ, तो कौन एक्सेप्ट करेगा उसे? सामने वाला थोड़ी ना मना करने वाला है। इसलिए प्रॉमिसरी नोट को एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं, लेकिन इट मस्ट बी ड्रॉन। बराबर है। एंडोस्ड बिकॉज कौन सी कंडीशन फुलफिल कर रहा है? ट्रांसफरेबिलिटी, देन ओनली वी कैन ट्रीट इट एज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। मेड बनाना तो जरूरी है, जैसे मैंने आपको पहले कहा, इट मस्ट बी इन राइटिंग, राइटिंग में है तो आपको बनाना है। एंड ट्रांसफर्ड फॉर कंसिडरेशन, और जब मैं किसी को ट्रांसफर कर देती हूँ देन इट मस्ट बी ट्रांसफर्ड फॉर कंसिडरेशन, फॉर वैल्यू। अगर कोई कंसिडरेशन नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, तो इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बराबर है। तो ये कोई चुरा भी सकता है, चुराने वाले के पास गुड टाइटल नहीं आता है। इफ यू वांट टू ट्रांसफर अ इंस्ट्रूमेंट अलोंग विद गुड टाइटल then it must be for consideration. The second presumption is that the date it bears is the date on which it was made. Every negotiable instrument must contain a date. Date उसमें होना जरूरी है। Date कौन सी समझी जाती है? जो इंस्ट्रूमेंट में आपने मेंशन की हुई है। Then accepted within reasonable time after being made and before maturity. जैसे मैंने आपको कहा प्रॉमिसरी नोट को एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो अदर इंस्ट्रूमेंट्स है, दैट मीन्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक जो है, वो क्या होने चाहिए? एक्सेप्ट होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? रिजनेबल टाइम। जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज मैंने आपके ऊपर ड्रॉ किया हुआ है, तो आपने रिजनेबल टाइम में और बिफोर मैच्योरिटी, समझ लीजिए आज मैंने ड्रॉ किया है, 3 महीने के बाद मैंने आपको उसकी मैच्योरिटी डेट उसमें मेंशन की है, तो 3 महीने के अंदर ही आपको उसको क्या करना है? एक्सेप्ट करना है। आफ्टर द मैच्योरिटी डेट, इफ द ड्रॉई एक्सेप्ट्स द बिल ऑफ एक्सचेंज देन इट डज नॉट हैव एनी वैल्यू। तो क्या करना जरूरी है? विद इन अ रिजनेबल टाइम and before the maturity. Then that every transaction was made before maturity. और जितने भी बार हम लोग उसे इंडोर्स कर रहे हैं या ट्रांसफर कर रहे हैं, that is before the maturity of that particular instrument. After maturity it does not have any meaning. बराबर है। तो जो भी transactions related with negotiable instrument हो रहे हैं, that must be before the maturity. Endorsement were made in same order in which they appear on the instrument. जैसे कि endorse किया हुआ है, समझ लीजिए कि मैं मेरे नाम पे उस बिल ऑफ एक्सचेंज के अगेंस्ट में डिसऑनर हुआ है, समझ लीजिए, ठीक है, और मैं खुद उसके अगेंस्ट में कोर्ट ऑफ लॉ में सूट फाइल नहीं करना चाहती हूँ, तो whom I will be held responsible? द प्रीवियस पर्सन कौन है? जिससे कि मैंने वो बिल ऑफ एक्सचेंज को लिया है। तो ऐसा करते करते क्या होगा? जो फर्स्ट पार्टी है उसके ऊपर क्या आ जाती है? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है टू पे द अमाउंट मेंशन इन दैट बिल इफ इट इज डिसऑनर्ड। ठीक है, तो कैसे किस तरह से जाएगा समझ लीजिए। ए है, बी है, ये ओरिजिनल है, ये ड्रॉअर है, ये ड्रॉई है, ठीक है। अब क्या होते जा रहा है? ये सी के पास गया है, डी के पास गया है, ई के पास गया, ठीक है, और ये बिल जब मैच्योरिटी को इसने इसके पास प्रेजेंट किया तो ये बिल क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। तो अभी ये किसके पास पहले अप्रोच करेगा? ई ने पेमेंट नहीं, ई किसके पास करेगा? डी, सी, बी, इस तरह से क्यों जा रहा है ये? इस तरह से उसमें नेम जो है वो मेंशन किए हैं। तो क्या है? एंडोर्समेंट वेर मेड इन सेम ऑर्डर इन विच दे अपीयर ऑन द इंस्ट्रूमेंट। द नेक्स्ट वन इज लॉस्ट इंस्ट्रूमेंट वॉज ड्यूली साइंड एंड स्टैम्प्ड। अगर वो इंस्ट्रूमेंट लॉस्ट हो जाता है तो ड्यूली साइंड एंड स्टैम्प्ड, साइंड और स्टैम्प, जैसे डिसऑनर हो जाता है तो नोटरी के पास जाके आपको उसके ऊपर स्टैंपिंग करना है कि दिस बिल is dishonored। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो you cannot file a suit against that person who fails to fulfill the conditions। यानी जिसने डिसऑनर किया है, जो ऑनर नहीं करता है बिल, उसके ऊपर आप कोई केस फाइल नहीं कर सकते if you do not get it protested from the notary। ठीक है, अगर
क्योंकि वो जो पर्सन जिसके अगेंस्ट में आप केस फाइल करना चाहते हैं, ही कैन डिनाई, वो क्या बोल सकता है, डिनाई कर सकता है कि इन्होंने बिल मेरे पास लाया ही नहीं तो मैं पेमेंट कैसे कर सकता हूँ। इसलिए क्या करना जरूरी है, आप पेमेंट के लिए गए हो, उसने उसे देने के लिए डिनाई किया है, तो तुरंत आपको किसके पास जाना है, नोटरी के पास जाना है और उसके ऊपर प्रोटेस्ट का एक क्या लेना है, आपको स्टैंप लेना है। एंड द लास्ट वन इज होल्डर इन ड्यू कोर्स। हु इज होल्डर इन ड्यू कोर्स, जिसने कंसिडरेशन के लिए, फॉर वैल्यू के लिए, एवरी पर्सन इज नोन एज होल्डर इन ड्यू कोर्स। जिसके भी पास बिल ऑफ एक्सचेंज आता है उसे क्या समझा जाता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स। ये समझा जाता है, ये अज्यूम किया जाता है कि उसने बिल को होल्ड किस लिए किया है, इन गुड फेथ होल्ड किया है। इन कॉन्ट्ररी, जब तक ये प्रूव नहीं होता है कि उसने वो उससे चुराया हुआ है या किसी से मिसप्लेस हुआ था इसलिए उसे वो रास्ते में मिल गया है, ये जब तक कि प्रूव नहीं होता है तब तक के दैट पर्सन इज नोन एज होल्डर इन ड्यू कोर्स। ओके, तो फॉर टुडे आई थिंक इट इज ओके विथ यू। लेकिन अगर नेक्स्ट इसमें हम लोग देखने वाले हैं प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक के बारे में डिटेल। सो थैंक यू।